Yes, sir. So let's begin with the discussion of mock cat 5 quant section. Let's start with the selection of questions first. Starting with question number 1, just make a note of the same. Question number 1, geometry, could have skipped it, part 3. Question number 2, I guess problem on ages, could have attempted it, part 1. Question number 3, log. मेरे को लगता है कि धीरे धीरे लॉग को भी थोड़ा सा अपने को डुएबल में डाल देना चाहिए. सो कंसीडरिंग दैट थिंग कि लॉग का बेसिक क्वेश्चन लग रहा है, बहुत टेक्निकल लग नहीं रहा है. Could have attempted it part 1. Question number 4, I guess profit loss, could have attempted it part 1. Question number 5, mensuration, could have skipped it part 3. Question number 6, something related to linear equations seems difficult, could have skipped it part 2. Question number 7, I guess time and work, could have attempted it part 1. Question number 8, functions, could have skipped it part 3. Question number 9, quadratic equations, could have skipped it part 2. Question number 10, I guess time, speed, distance, could have attempted it part 1. Question number 11, SICI, could have attempted it part 1. Question number 12, allegation mixtures, should have attempted it part 1. Question number 13, although it serves an indices, but this is something that we have done multiple times in the past, so ideally should have attempted it part 1. Question number 14, geometry, coordinate geometry, could have skipped it part 3. Question number 15, something related to percentage, could have attempted it part 1. Question number 16, I think this is something related to linear equation, could have skipped it part 2. Question number 17, the averages, should have attempted it part 1. Question number 18, geometry, should have skipped it part 2. Question number 19, again geometry, could have skipped it part 2. Oh, sorry, part 3, both 18 and 19. 20th should have skipped it, all the progressions, but as of now, skip it for part 2. Question number 21, elections related is something from percentage, should have attempted it part 1. And question number 22, set theory, I think could have attempted it part 1. इसमें तो attempts बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मतलब मेरे हिसाब से शायद it was an easier paper. Let's check it Yes, out. sir, बहुत सारा. बताइए. The second question. Second से start करने का है. Okay, just give me 1 second. Sir, 12 है sir, first part. 12 Part question. 1 में 12 आ गए. That's a good हाँ. point. अच्छा है. चलो 1 मिनट का टाइम दीजिए. We'll start with it. चलो लेट स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 2 बताने का है किसी को? एनीवन? नो सर. No, sir. किसी को लगता है तो पूछ लीजिए जल्दी से. एल्स गो अहेड. यस तो इसका Yes, आंसर sir. 23 आया था. कितना आया था? तो बता दो. 23. चलो we'll discuss that. देख लेते हैं क्या दे रखा है. 10 years ago Edward had 8 members and the average of their ages then was 33 years. 10 years ago total age कितना हो गया? 264 पहले था और अब 274. हाँ 264 था. 8 लोगों का एवरेज 33. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नो नो सर. सर. ठीक है. And 4 years later, now the confusion here at this point of time is ये 4 years later कब से बोल रहा है? 10 years ago से या प्रेजेंट से? 10 years ago. 10 years ago. यार मेरे को गलत लग रहा है. 4 years later जब बोला जाता है तो ये वो तो प्रेजेंट की बात होती है. प्रेजेंट की बात का होएगा ना. प्रेजेंट से 4 years later होना चाहिए लॉजिकली. इस क्वेश्चन में इन्होंने गलत कर रखा है बिकॉज किसी ने तो आके मुझसे पूछा था, उसको मैंने यही बोला था कि प्रेजेंट से होना चाहिए, तो तब मुझे पता चला था कि इस क्वेश्चन में गलत दे रखा है. बट इन्होंने जिस हिसाब से दे रखा है मैं उस हिसाब से बताता हूँ. बाकी लॉजिकली व्हेनेवर इट्स 4 years later इट इज विद रेफरेंस टू द प्रेजेंट सिनेरियो होना चाहिए. सर बट अगर स्टार्ट ही 10 इयर्स अगो से किया है तो अपन उसको बेस लेके करेंगे ना. नहीं मैं समझाता हूँ क्या रीजन है. 10 years ago की बात किया है बराबर, ठीक है, लेकिन when we are talking in terms of 4 years later it is always with reference to the current scenario. इसको लैंग्वेज चेंज कर देता तो मैं 10 years के रेफरेंस में होता. 10 years ago this.
4 years after those, you could have used after 4 years later from 10 years ago or something like that. But when you are simply using 4 years later, it simply means it is from the current scenario. ये current scenario से होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है? बट ठीक है, as per the question 4 years later यहीं से लेके चलते हैं. तो 4 years में हुआ क्या? मतलब ये सिनेरियो हो गया, यहाँ से 6 years ago का. Yes, sir. 6 years ago का हो गया, तो टोटल एज देखो 264 था और 4 साल में 8 लोगों के हिसाब से 32 years बढ़ा होगा. 32 बढ़ा, हाँ 32. That is 296. 296, हाँ 4 years later, Mrs. Edward died at an age of 64. इसमें से वो 64 की एज की मर गई. And William Edward was born. After 3 more years, Mr. Edward died. ठीक है, अब ये एक बंदा बॉर्न तो हो गया, लेकिन उसका एज तो 0 है. हाँ Just born. yes, sir. तो अभी नेट एज कितना हो गया? 232 आया ना. Yes, sir. इसके बोल रहे हैं आफ्टर 3 more years. अब ना look at this. After 3 more years मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से. अब मैं नहीं बोल रहा हूँ प्रेजेंट से बात करूंगा. हाँ Now I am talking with reference to this point only. तो मुझे क्लियरली विजिबल, यानी 3 years ago ले लो. टोटल एज की बात करते हैं. 232 था. एक जो बंदा बॉर्न हुआ था उसकी 3 साल एज बढ़ गई होगी. सॉरी, टोटल 8 लोग थे तो 24 years बढ़ गई होगी, 24, हाँ है ना. एंड मिस्टर एडवर्ड डाइड एट एन एज ऑफ 72. तो अब क्या हुआ? ये क्या हो गया? कितना हो गया? 1 एनीवन 176 हो रहेगा. 48 नहीं 188 है ना. So 184. 184 हो रहा है सर. Yes. ठीक है, हाँ 184. सर 180, 184 कितने लोगों का एज है? 8 8 जनों का. 8 लोगों का. Sir, Edward 7 died. जनों को हुआ ना. Edward died and Liz Edward was born. तो सर ये उस साल में थोड़ी कंसिडर करेंगे. एक सेकेंड क्या पूछा? फाइंड द प्रेजेंट एज पूछा है ना. ये 3 साल पहले की बात थी, प्रेजेंट की बात कर. 184 में कितना ऐड हो जाएगा? 24. 20, Which turns out to be 208. 208. 0. और ये 8 लोगों का एवरेज है. Hmm. This should have been 26. Yes, sir. सर ये एक बार आपने 24 प्लस क्यों करा ऊपर? 184 में हाँ 3 साल पहले 184 था. अभी 8 लोग थे. 3 साल में सबकी 8 3 बढ़ गई, मतलब 24 का हाँ. इंक्रीमेंट हो गया. ठीक है. Can I remove this? Solution हटा दूं? yes sir. Going ahead. Next please. सर Third. थर्ड क्वेश्चन नंबर 3. बताने का है किसी को? No, No sir. sir. Anyone? नो सर. सर Yes ma'am. सर इसमें मेरा 100 आ रहा था आंसर. Okay, let's check it out. सर ये शीट का है ना क्वेश्चन? I guess इसमें 2 आंसर्स आ रहे हैं, स्क्वायर और एक माइनस. हाँ एक 10 स्क्वायर, एक 1/100. We'll just figure it out. 2 आंसर आएंगे 100 and 1/100. जो ऑप्शन विजिबल है वो मैं टिक कर दूंगा. देखिए log x minus log y होता है log of x upon y. हाँ है ना. Yes, sir. Yes, sir. ये कट गया और ये रूट x हो गया, और रूट x हो गया 1/2 log x upon log 10 equal to log 2 log 10 upon log x cross multiplied. We'll have log of x का square equal to 4 log 10 और 4 log log 10 होता है 1. Oh, तो log हाँ. x हो गया आपका plus minus 2. When Minus log 2. x equal to 2, x equal to 100. When log x equal to minus 2, x equal to 1/100. ऑप्शन में 1/100 दिख रहा है तो I'll go for it. शीट का क्वेश्चन. मैंने आगे वाला नहीं. अच्छा ठीक है सर. प्लस माइनस 2 नहीं लिया आपने, केवल 2 लिख दिया. दैट्स द मिस्टेक. क्लियर है? हाँ Hmm. सर ओके. Yes, Shall I sir. remove this? Yes, sir. yes, sir. Next please. 7. 4. Oh 4, sorry. बताने का है किसी को? Yes, sir. हाँ अच्छा. सर एक बार बता दो. रेडी लगा. Shape Singh, a fruit seller, sold 450 apples at 9, 10 and 12% profit in 3 parts separately. He gained 9, 3/7% on the first 2 transactions together. All the 3 transactions gave him an aggregate profit of 10%. How many apples did Shape Singh sell in the first transaction? Allegation mixture लगा दोगे? Yes, sir.
हाँ सर 9 और 10 फर्स्ट टू ट्रांजेक्शन था, इससे ओवरऑल 9 3/7 बैठ रहा है, मतलब दिस शुड बी 4/7 एंड दिस शुड बी 3/7, यानी 4:3 का रेशियो आ गया। हम्म पहले जो दो ट्रांजेक्शन हुए उसमें जो आपने क्वांटिटी सेल किया था वो 4:3 की रेशियो में था। हम्म ये 9 3/7 को आपने मिक्स किया 12 के साथ और ओवरऑल बैठा 10%। दिस इज 2, दिस इज 4/7, 1 2, तो रेशियो हो गया 7:2। सर 9 3/7 को 12 के साथ कैसे किया? ऑल थ्री ट्रांजेक्शंस गेव हिम एन एग्रीगेट प्रॉफिट ऑफ 10। बराबर मैम, फर्स्ट सेकंड का मिक्सचर पता है, तो फर्स्ट और हाँ सेकंड को सेपरेटली लूं या उसके मिक्सचर को लूं, एक ही बात है। हम्म तो आप बोल रहे हो फर्स्ट सेकंड थर्ड से 10% आया, हम्म मैं बोल रहा हूँ इसको हटा के 9 3/7 और 12 अच्छा इससे हाँ 10 चल जाएगा क्या आपको? हाँ हाँ आ गया सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। No, अभी जो sir. 7 था, ये लॉजिकली देखो 4 + 3 7 ही हो रहा है, मतलब यू मस्ट हैव टेकन द वैल्यूज 4:3 के रेशियो में, हाँ या ना? Yes, sir. तो बोल दीजिए। नो Anyway, सर। No, sir. नहीं, डिवाइड 450 द रेशियो 4:3 यू विल गेट 4 के लिए 200। ओके सर। Understood, sir. ये 200 कैसे किया? या 200 जादू से किया, बताते हैं मैडम, बता। मैम 4:3 का रेशियो समझ में आ गया? नहीं। 4:3 का रेशियो समझ में आ गया था 9 10 से। हाँ हाँ इस 4:3 के रेशियो को 9 3/7 जो रिजल्टेंट वैल्यू बना उसको 12 के साथ ऑपरेट किया और 10 आ गया, हाँ मतलब रेशियो 7:2 का आया। हाँ और ये 7 कौन सा था? जो 4:3 के रेशियो से कंबाइन करके बना था। अच्छा हाँ आइडियली इट शुड हैव बीन 4:3 फॉर दिस 7 एंड 2 लास्ट में। अच्छा ठीक है। Go ahead. तो Yes. इसके अंदर ऐसे नहीं करना होता 7 मतलब 3 × 7 कर दें और 7 को इस वाले रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर दें उसको 7 से कर दें। नहीं मैम, आप ऐसा बोल रहे हो कि 4:3 7:2 बराबर। राइट ये राइट बोल ये वाला ही। और फिर अब मैम, इन दोनों को मैम, मल्टीप्लाई कर देते। सुनिए सुनिए, हम्म ये ए बी का रेशियो है 4:3 हम्म और ये A+B का। ए प्लस बी और सी का रेशियो है। ओ सर ठीक है, अभी अलग होता अपने पास एज इन जो 7 वाली चीज है तो उस केस में कैसे ऑपरेट होता? एक सेकंड का टाइम देंगे। मतलब ये 4:3 तो अपना 7 मैं बना तो रहा बोल है। रहा हूँ, एक सेकंड का टाइम देंगे। हाँ हाँ बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर ये जो 7 है अभी वो 4:3 जो था वो 7 बना रहा था इसलिए अपन ने 4:3:2 लिया। जस्ट इन केस कुछ और रेशियो रहता तो इसका तो कैसे 4:3 ऑपरेट? रहने दो, हाँ आप इधर बोलो 7:2 की जगह क्या लेना चाहते हो, जो इच्छा है बोल दो। 8 8:2। 2। यार क्या बकवास करते हो मैडम, सॉरी सर। सर 4:1 ले लेते हैं। यहाँ पे टोटल 7 के था, हम्म यहाँ पे टोटल 5। 4y है, ये हाँ 7x था, ये 4y, हाँ और मैं ऐसा बोल रहा हूँ 7x = 4y, हाँ तो y = 7/4x, अच्छा ठीक है हाँ। तो इट वुड हैव बीन 4 3 7/4 का रेशियो। ओके सर। ये यहाँ पे 1 था, सपोज ये 3 होता तो इंटू 3 हम्म और लगता। अच्छा ठीक है सर। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट प्लीज, 7। 7 बताने का है। Yes, sir. Let's check it out. Yes, Question number sir. 7. Interview takes 200% more time as long as Bob and Charlie together take to finish the board. Bob takes 300% more time as long as Andrew and Charlie together.
And if all the three start working together, they complete the project in 24 hours. Calculate the number of hours taken by Andrew alone. ये एंड्रयू है, ये बॉब है, ये चार्ली है, ये 1 घंटे में एक्स यूनिट करता है, ये 1 घंटे में वाई यूनिट करता है, ये 1 घंटे में जेड यूनिट करता है। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। No, No, sir. sir. Andrew take 200% more time as Bob and Charlie together. इसका मतलब एंड्रू, अगर बॉब और चार्ली को 1 दिन लगता है तो एंड्रू को 3 days. 10 days. 3 डेज दिन। लगते होंगे। ये क्लियर है? Yes, sir. मतलब इनका टाइमिंग रेशियो है 1:3:1, तो एफिशिएंसी रेशियो है 1:3। मतलब जो हम्म। एंड्रू 1 दिन में कर रहा है वो बॉब और चार्ली का 1/3 है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। No, sir. बॉब टेक्स 300% मोर टाइम एज एंड्रू एंड चार्ली टुगेदर। मतलब बॉब का जो टाइम है एज कंपेयर टू एंड्रू एंड चार्ली 4:1 है। Yes, sir. हाँ, एफिशिएंसी 1:4 होगी। Hmm. I'm assuming total work to be 24 units, which they are completing in 24 hours. तीनों जब साथ में काम करते हैं। Hmm. तीनों मिला के 1 घंटे में 1 यूनिट करते हैं। Yes, sir. इसके बाद हो जाएगा करके बता दो। नहीं सर, हो जाएगा। इफ रिक्वायर्ड बोल दीजिए, मगर नहीं हो जाएगा सर। थैंक यू सर। सर ये 1 कहाँ से लाया? x plus y plus z। अच्छा, मैम, 20 आपने टोटल वर्क ले लिया। यस। सर मैंने क्या किया था, एक बार प्लीज सुन लो। हाँ बोलिए। सर मैंने ये किया कि जैसे x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड अपॉन 3 लिखा है ना आपने, हाँ तो 3x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड लिया ठीक है। एंड 24 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर दिया ठीक है। टोटल वर्क, और x प्लस वाई प्लस जेड को सब्स्टिट्यूट कर दिया 4x से, ठीक है। तो टोटल वर्क हो गया मेरा 96x, और a का पूछा है तो 96x डिवाइड बाय x, सो 96 एकदम सही है मैम, कोई दिक्कत नहीं है। आपने वही किया जो मैंने किया, बस मैंने क्या किया, एक्स वाई जेड को 1 ले लिया, आपने उसको 1 नहीं लिया और एक्स वाई जेड छोड़ दिया, दैट्स इट। बाकी सब सेम, ओके ओके। एकदम सही है, कोई दिक्कत। शैल वी गो अहेड? यस सर। Yes, sir. yes, sir. यस, लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 10. 10. बताने का है किसी को? नो सर। No, sir. No, sir. एनीवन? सर Yes, sir. अच्छा, यस है या नो है, मेरे को नहीं समझ में आया, सॉरी। Yes, है sir, yes. यस मतलब बताना है, राइट? हाँ। बोलिए मैम, आप कुछ बोल रहे थे वंशिका। सर एक्चुअली मतलब इसमें इंडिविजुअल वैल्यूज निकालने की कोई सोल्यूशन नहीं क्या, छोटा मतलब? आई डोंट हैव एन आइडिया, मेरे को एक बार Okay, क्वेश्चन sir. लिखना है। हाँ जी हाँ जी। Akshay travels on a straight route joining P and Q in such a way that after each 20th, 40th and 60th minute from his starting point, he increases his speed by 10 km/h, and after each of 70th, 80th, 90th, 100th and 110th minute from the start, he decreases his speed by 10 km/h. If Akshay began his journey at a speed of 50 km/h, took exactly 2 hours to reach Q, distance between P and Q. देखो, 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ पे उसकी स्पीड 50 की है, फिर हो गई 60, फिर हो गई 70, 70, फिर हो गई 80, फिर हो गई 70, 70। 60, 50, 40, 30. अब बस कैलकुलेट करने कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। अगर 50 की स्पीड है, ये 20 मिनट्स यानी 1/3 आवर 50/3 डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। यस अगले सर। 20 मिनट्स यानी 1/3 आवर 60/3 किया होगा। अगले 20 मिनट्स यानी 1/3 आवर 70/3 किया होगा। अगले 10 मिनट्स यानी 1/6 आवर 80/6 किया होगा। देन 70/6 किया होगा। देन 60/6 किया होगा।
देन 50/6 किया होगा, देन 40/6 किया होगा, एंड देन 30/6 किया होगा। हाँ या ना? Yes, sir. इसका एलसीएम 3, 50 60 70 होता है 180। इसका एलसीएम 6, 80 70 60 50 40 30 होता है मेरे हिसाब से 220, नहीं सॉरी 330। कोई दिक्कत? नो सर। मेरे हिसाब No, से ये हो sir. गया 60, मेरे हिसाब से ये हो गया 55, आंसर हो गया 115। ओके सर। कोई दिक्कत हो कीजिए प्लीज। नो सर, No, हो sir. गया। शेल वी गो अहेड। यस सर। Yes, sir. 11. बताने का है किसी को? No, sir. सर। No, sir. नहीं सर। चलो बढ़िया, अगला नेक्स्ट प्लीज। 12. 12। बताने का है किसी को? Yes, sir. यस यस सर। सर। Yes, sir. Yes, sir. Two vessels of equal capacity contain water and alcohol. The first vessel containing alcohol is filled up to its maximum capacity, and the second vessel containing water is 2/3 empty. Okay. The content of first vessel is poured into the second vessel to fill it to its capacity, and the content of the second vessel is poured to the first vessel until it's full again. Thus, then again, and then the content of the first vessel again poured into the second vessel to fully fill it up. What will be the fraction of alcohol in the second vessel finally? Yeah, look, what I can observe about the question is that कि ये 1/3 की बात कर रहा है, कुछ तो रिलेटेड, और ऐसा 3 बार कर रहा है, और अगर 1/3 को 3 बार लगाने का है तो मैं टोटल वॉल्यूम को 27 ले लेता हूँ। किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए प्लीज। नो सर। No, sir. ये वेसल 1 है, हम्म। एल्कोहल है इसमें, टोटल कैपेसिटी 27, मतलब इसमें अभी एल्कोहल है 27, हम्म। और इसमें वाटर है 18, क्योंकि 2/3 कैपेसिटी तक ही फिल है। हम्म। आपने क्या किया, यहां से अल्कोहल उठा के डाल दिया, तो अल्कोहल 9 और वाटर 18 हो गया, Yes, sir. और यहाँ पे क्या रह गया? 18. 18। हाँ। Water वाटर 0. 0। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। नो No, सर। sir. सर इसमें जो सेकंड वेसल में बोला है उसमें बोला 2/3 एम्प्टी है, तो मतलब वो 1/3 ही फिल्ड है ना? अच्छा 2/3 एम्प्टी है, सॉरी, मिस्टेकनली टेकन। मतलब it should be 9, 9। so it should be 18 and it should be 9। कोई दिक्कत? नो सर। Now the content of second vessel is poured again in the first vessel until it is full। तो यहां से आप 18 लीटर इसमें डालोगे, 18 लीटर इसमें डालोगे, हाँ या ना? हाँ। और Yes, ये sir. 18 लीटर 2:1 के रेशियो में 2 आएगा, is to 1 के रेशियो। हाँ। यानी 12 लीटर तो अल्कोहल आएगा, 6 लीटर हाँ। वाटर आएगा, और इधर से 12 लीटर कम हो गया, मतलब 6 लीटर रह गया, और 12 लीटर बढ़ गया, सॉरी एक सेकंड, माइनस से -12 -6, तो ये रह गया 3 लीटर, ये रह गया 6 लीटर, ये हो गया 6 लीटर, और ये हो गया 21 लीटर। 21. अब इसके बाद क्या किया, फर्स्ट को वापस से सेकंड में डाला, इधर 9 लीटर है, मतलब 18 लीटर यहाँ पे डालोगे, जो आएगा 7:2 के रेशियो में, मतलब 14 लीटर ये आएगा और 4 लीटर ये आएगा, इधर से -14 होगा, -4 होगा, तो ये हो गया मेरा 7, ये हो गया मेरा 2, ये हो गया मेरा 18, 20 सॉरी 20, ये 20 and 7। हाँ। what they are asking is the fraction of alcohol in the second vessel, 20 out of। 27। 27. कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। नो सर। No, sir. Shall we go ahead? Yes, यस sir. सर। Shall I remove this? यस सर। Yes, sir. Going right, next please। 13. 13। बताने का है किसी को? No, नहीं sir. सर। Anyone? नहीं, चलो नेक्स्ट प्लीज। 15. 15 बताने का है किसी को? Yes, sir. Sure. यस सर। A biologist conducted an experiment on guinea pigs. Not sure what it is.
और फिर 30% फॉर मेल्स। टोटल कितने पिग्स थे आपके पास? 100 में से मेल्स कितने थे? 40 फीमेल कितने थे? 70। 70 ऑफ द डैश 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 pigs that died during the experiment, इसमें से कुछ मर गए। हाँ, कितने? 20% फीमेल थी। कितने मर गए? पता नहीं सर, एक्स। पता नहीं। 20x 0.2x We don't know that, so let's assume X died. हाँ। 20% पर फीमेल, तो इनमें से मेल हम्म, कितने थे 0.8 और फीमेल कितनी थी? 0.2 0.2x। हाँ, What is the ratio of death rate among male to death rate among female? मेल का अच्छा डेथ रेट होता क्या है? क्या सर? डेथ रेट कैसे कैलकुलेट करोगे? 1000 में से 300 लोग मर गए, डेथ रेट कितना था? मतलब 30%। डिवाइड कर देंगे 0.8 बाय। हाँ। 30%। हम्म। yes sir दैट इज 0.8x अपॉन 30, ये डेथ रेट था 30। मेल का। हाँ हाँ। हाँ। और आपको बताना है रेशियो ऑफ डेथ रेट ऑफ मेल टू डेथ रेट ऑफ फीमेल, फीमेल। ये बताने का है, हाँ या ना? यस सर। एक्स काट दूं, डेसिमल से डेसिमल हटा दूं, इट विल बी हो 8 इंटू जाएगा सर। 70 अपॉन, रुक जाओ ना यार, अब तो कर लेने दो, इतना ही किया है। कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। नो सर। सर ये इनका सॉल्यूशन, जैसे ये तो समझ में आ गया पूरा, लेकिन इनका सॉल्यूशन देखो, वेन डायग्राम वगैरह यूज कर रखा है इन्होंने। एक सेकंड रुक। हाँ, मैं कह रहा था एक कि ये सेकंड और सॉल्यूशन रुक तो जाओ यार, समझ सॉरी, में आ एक गया। सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड और रुक जाओ। चलो हाँ, सो यस, क्या बोल रहे थे? मैं तो सर इनका सॉल्यूशन पूछ रहा था, ये मतलब वेन डायग्राम वगैरह देके कर रखा है। यार एक मिनट और रुक जाइए प्लीज, आई एम सो सॉरी। सो सॉरी सर, लेट्स कंटिन्यू। आप इनके सोल्यूशन की बात कर रहे थे, बराबर है? हाँ, मतलब इन्होंने क्या अप्रोच लगाई है इस इनको हिसाब क्या से पता पूछा। है यार, अपनी अरे केवल नहीं खुद फिर की सर। जिम्मेदारी ले रखी है जिंदगी में यार, दुनिया की थोड़ी ना लेते रहूं। नहीं बिल्कुल सर, अपनी जिम्मेदारी है, वो समझ में भी बस आ तो गई। दूसरों को मैं क्या करूँ यार, 100 लोग हैं, 100 क्या तरीके पता। बताए। लेकिन वो तरीका अपन कहीं और लगा ले सर, काम आ जाए, इसलिए पूछ रहा था। इन्हीं के तरीके पढ़ पढ़ के तो वो लॉग वाला क्वेश्चन को लॉग से कर रहे थे तुम, जो मैंने बता दिया था बिना लॉग के सर्ट्स एंड डाइसेस। अरे इनके कहाँ से पढ़ा सर, मैं टेस्ट के पहले थोड़ी दूंगा। तो फिर तुम्हारी सोच इनसे कैसे मिल रही है? क्या पता सर। मेरे से मिलनी चाहिए इन लोगों के अंदर, जाने देने। देख ले सर, देखते हैं क्या किया, मेरे को भी नहीं पता। हाँ, ऐसा दे रखा है। ओहो, AGB, फीमेल अलाइव, अरे क्या बकवास है। पता नहीं है, देखता हूँ, रुक जाओ। ऐसा बोल रखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a प्लस जी इक्वल टू 0.3 इंटू a प्लस b प्लस g प्लस n। तो भाई ये n क्या है? फीमेल अलाइव। सर छोड़ दूं क्या? छोड़ दो सर। मेरा वाला समझ में आया नहीं है, 100%। काम निकल जाएगा। अरे बहुत कुछ हो जाएगा उससे तो। इतना ही चाहिए जिंदगी में, और क्या करने। नेक्स्ट प्लीज। 70। 70। बताने का है क्या किसी को? हाँ सर।
बताना है, देख लेते हैं। ऐसा दे रखा था एवरेज स्कोर इन एग्जामिनेशन टेकन बाय 64 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 105। टोटल स्कोर बता दो। बोलने का है। 67-20. हाँ If the score of the 5 best performers are not considered, 64 में से 59 स्टूडेंट्स रह गए, एवरेज स्कोर ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट फॉल्स बाय 2, 105 की जगह 103। टोटल बता दो। 6077. You're हाँ सर multiplying 59 into 103। 103. 6077 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। इन 5 बच्चों का टोटल कितना आ रहा है? 643. 643 If none of the 5 highest scores is below 75, मतलब 75 या उससे ज्यादा हो सकता है पांचों हाँ टॉप स्कोर्स का, 1 2 3 4 5, and each of the 5 top scorers has a distinct integral score, maximum possible score of the topper। एक को मैक्सिमाइज करने का है, बाकी सबको मिनिमाइज मिनिमाइज। Minimize. 75 देना है, सबको अलग अलग 76 देने का है। 77 हाँ जल्दी से ऐड करके बताओ कितना हो रहा 337 है। 306. 306. दिक्कत है बोल। नहीं सर। अरे सर दिक्कत मुझे है इसमें भाई, गलत लिखा है, ढंग से तो देखो। 337. हाँ. सर मुझे इसमें एक चीज पूछनी थी। पूछिए मैम। अब जैसे एवरेज दिया हुआ है 105, बट हमारा एक स्कोर तो बहुत बड़ा आ रहा है। आ जान दो मैम, आपको थोड़ी बोला 100 नंबर का पेपर ओके, हो सकता है ना, एनमेट का एग्जाम हो 360 नंबर का, ठीक है सर, ठीक है। और आप 337 ले आओगे, बाकी बच्चे लाएंगे 75। आपको क्या दुख है इसमें? नहीं सर, मतलब वैसे यूजुअली होता बी है ना हैप्पी कि अबाउट इट, यू आर द टॉपर नो। नहीं सर, मतलब कि जो हमारे जो भी इंडिविजुअली ऑब्जर्वेशंस का वैल्यू होता है वो एवरेज के बीच में लाया करता है। मैम ये बाकी जनता है, ये ऐसी ही रहेगी, आपको एक्स्ट्रा करने का है, समझ गए? चलो कुछ ना, समझ में तो नहीं आया होगा आपको, खैर जाने दो। सर नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। 21 बताने का है किसी को? हाँ सर। यस सर क्या बात यस कर रहे हैं, सर। परसेंटेज इलेक्शन ये सब पूछोगे क्या भैया? Two candidates contested an election in which A won. In re-election, A's opponents increased by 37.5%. This time, B won the re-election by a majority twice as great as that by which A won the first election. How many voted for A in first election if the total number of votes is 360? 360 थे total votes. कुछ ने A को वोट दिया, कुछ ने बी को वोट दिया। मैं मान के चलता हूँ ए को 8x ने वोट दिया, तो बी को 360 माइनस 8x ने वोट दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। नो सर No, sir. मैंने ऐसा क्यों लिया 8x? सर आगे 37.5 का कैलकुलेशन इजी करने के कितना लिए. होता है? 8/12 नहीं सॉरी 3. What 3? Sir, 8x 3/12 का 37.5% is 3x. 3/8 3/8 37.5 हाँ मतलब. कैलकुलेटर यूज कर रहे हो? Yes, sir. भगवान आपको सद्बुद्धि दे। अरे सर इस टाइम पे करती हूँ, टेस्ट के टाइम में थोड़ा करती हूँ. फिर भी भगवान आपको सद्बुद्धि दे। मैडम इस टाइम पे कर रहे हो क्योंकि फ्रैक्शंस याद नहीं है। याद कर लोगे तो जिंदगी आसान होगी, कैट तक की। Okay, sir. Two candidates contested an election. A won. In re-election, वापस से election हुआ. A's opponent increased by 37.5%. जितना उनको मिला था उसका 3/8 इंक्रीज हो गया। 3/8 बोले तो 360 का 3/8 कितना होता है, कोई बता सकता है? प्लीज डोंट यूज कैलकुलेटर, छोड़ो, कर लेने का है तो उसमें 120 सर। 135 होगा सर। हाँ 135 135 सॉरी 135। कैलकुलेटर से भी सही नहीं कर पा रहे हो तुम तो। नहीं सर, मैं कैलकुलेटर करता तो सही बोलता ना आपको। ये बंदा गलत इसलिए बोल देता कि प्रूव हो जाए, कैलकुलेटर यूज नहीं कर। अरे इतने का इंक्रीमेंट है, इसके नए वोट्स कितने हो गए?
minus 11x. सर 2 495 है ना? Yes, sir. तो इसके वोट्स कितने हो गए? 360 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं? हाँ या ना? Yes, sir. अब क्या हुआ? सर ये 11x माइनस 135 कैसा है? हाँ सर। फिर कुछ बड़ा सा लिख दो ना, तो तुम लोग गोल घूम जाते हो। अच्छा ठीक है, समझ गए। B won the re-election by a majority twice as great as which A won the election. A कितने वोट से जीता था? 8x. कितने वोट से जीता था ये? X minus 360 minus it. Yeah. B कितने वोट से जीता? 490 95 minus 11x minus minus 11x minus 11x 135. minus 135. और B जितने वोट से जीता वो A की मेजॉरिटी का डबल है। हम्म, Yes. सॉल्व कर लोगे या करके बता दो? हो हो जाएगा सर। जाएगा सर। पक्का? हाँ जी। चलो, shall I remove this? यस सर। Yes, sir. Next, 22 बताने का है? नो सर सर। अपन अगर वो सर। क्वेश्चन में 360 की जगह और कुछ मान के कर लेते तो जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। इसमें हाँ मालिक मानोगे कैसे? दे रखा है ना तो। नहीं, वही तो इसकी जगह जैसे 37.5 भी दे रखा है अपने को, तो अपन इसकी जगह कुछ मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू जो उसका मालिक ये मल्टीपल है। परसेंट में है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। आप जो बोल रहे हो वो कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हम्म, लेकिन फिर रिलेट करना आना चाहिए इतना कि मैंने ले लिया 360 की जगह 100 या फिर हाँ 80, तो फिर आपको समझ में आना चाहिए कि जो आपका आंसर आएगा ना उसको इंटू 4.5 करना पड़ेगा टू गेट द एक्चुअल आंसर। ठीक है। ये क्लैरिटी होना चाहिए, जाके पूछना मत फिर ये क्यों कर रहे हैं सर। कर दिया बस। 22 बताने का है किसी को? Anyone? सर 22 अपन ने फर्स्ट कैटेगरी क्यों डाला? हाँ सर क्योंकि मैंने ये भी पूछा मेरे हिसाब से सेट थ्योरी, अच्छा प्रोबेबिलिटी है क्या? हाँ। प्रोबेबिलिटी है। वाज अ रॉन्ग सिलेक्शन, मैंने सेट थ्योरी देखा था, गलत है। इसको सेट पार्ट 3 में डाल दीजिए। हम्म, ठीक है नेक्स्ट प्लीज। सर तो 6 एक मिनट पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। बोलिए मैम। सर मैंने को सेट थ्योरी की तरह किया था तो वो क्या था, मतलब प्रोबेबिलिटी वाला स्टफ तो इतना वो काम ही नहीं आया। कंग्रेचुलेशंस मैम। ओके सर। लुक आई टेल यू समथिंग। यस सर, ये मेरे से भी सेट थ्योरी से हो गया था बाद में। सर पर इसमें तो देखो एक बात जब बताता हूँ। पूछा है भाई डिवाइड करके ही आ इसमें तो गया था इसमें facility तो। होती है। बोलिए मैम, ये बताने का है? दस आपने प्रोबेबिलिटी का सेट थ्योरी से कर दिया, यू आर अ जीनियस। थैंक यू सर। यू शुड बी। अब एक बात बताइए, सेट थ्योरी में कभी वैल्यू फ्रैक्शनल फ्रैक्शन होती है क्या? मतलब लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट 70 बिजनेसमैन, यू आर टॉकिंग अबाउट 20 ऑफ देम ओन दी स्कूटर, 10 ओन दी बाइक, फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे आ गई प्रोबेबिलिटी के में? सर यस मैम। फेवरेबल अपॉन टोटल मैंने खुद ने भी उसी इज से फेवरेबल करा था। अपॉन टोटल। हाँ 20 थे और 70 हाँ सर, टोटल फेवरेबल वही अपॉन किया। टोटल होता क्या है? प्रोबेबिलिटी का तो मैम फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी के बिना कहाँ हुआ आपका आंसर? हाँ वो तो है, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला था पहले किसी की मतलब। आपकी बेइज्जती नहीं हुई। गॉट द आंसर मैम? इन्होंने पूछा था यस ज्योति सर। वंशिका। यस सर। यस सर। बाकी आई एम 100% श्योर अबाउट द टू ऑफ यू, आप लोग कर सकते। शेल वी गो अहेड? यस सर। यस सर। यस सर प्लीज नेक्स्ट। 6 पार्ट 2 पार्ट स्टार्ट 2 हो गया सर। किसी को बताने का है? नो यस सर। यस अच्छा सर। एनीवेज वी हैव sir. केप्ट क्वेश्चन नंबर 22 ऑन होल्ड फॉर नाउ, पार्ट 3 में जाके डिस्कस करेंगे। यस, ठीक क्वेश्चन है नंबर सर। 6, एनीवन हैविंग अ डाउट? सर यस सर एक बार बता। मैंने क्या किया, मेरे को पहले तो बहुत टाइम लग रहा था, बताने फिर का है मैंने क्या? ये देख। हाँ यस सर। हाँ सर बताना इनको है। एक बार क्वेश्चन तो रीड, मैं कौन सा टेस्ट देता हूँ बैठ के यहाँ पे? लेट मी रीड द सर क्वेश्चन फर्स्ट।
Sorry, sir. Yes, ma'am, you should be. The cost of one chocolate bar, two chewing gums, and 5 candies is 45. The cost of two chocolate bar and 3 candies exceeds that of 4 chewing gums by 17. Which of the following is necessary to determine the cost of a candy? ठीक है. अब बताइए क्या किया आपने? सर ये तीन वेरिएबल 2 इक्वेशन बन रही थी, बन तो रही मैं थी. पहले तो ऑप्शंस चेक करने लग गई थी, लेकिन फिर मैंने लास्ट ऑप्शन देखा जो कि था तीसरी इक्वेशन आ गई, तो इसलिए मैंने टिक कर दिया. ये 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन से डेफिनेटली डिटरमाइन हो जाएगा. एकदम सही किया मैम, कोई दिक्कत नहीं. अभी डिस्कस करना है क्वेश्चन. Yes, sir. चलो, लेट्स फिगर इट आउट. चॉकलेट, one chocolate, 2 chewing gum, 5 candies, 45. कोई दिक्कत? No, sir. 2 chocolate, 3 3Z. candies, हाँ. 4 chewing gum, 17. 4 chewing gum, 17. कोई दिक्कत? No, sir. लेट्स गो अहेड. अब मेरे पास क्या है, मेरे को कॉस्ट ऑफ कैंडी निकालनी है. कॉस्ट ऑफ कैंडी मतलब दे आर आस्किंग मी द वैल्यू ऑफ Z. Z. और Z यानी एक इंडिपेंडेंट सोल्यूशन निकालना है. 3 वेरिएबल में इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आप तभी निकाल सकते हो जब आपके पास 3 इक्वेशन हो. अगर 3 वेरिएबल के साथ 2 इक्वेशन आती है तो आप डिपेंडेंट सोल्यूशन निकाल सकते हो, इंडिपेंडेंट कभी नहीं निकाल सकते. व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि अगर आपसे 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन दे देंगे तो आप x + y + z, x + y, x + z ऐसा कुछ निकाल सकते हो, बट इंडिविजुअली x, y और z का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, राइट? Yes, sir. चलो, गोइंग अहेड. द कॉस्ट ऑफ 4 चॉकलेट, which of the following is sufficient? The cost of 4 chocolate bar and 13 candies. 4 chocolate bar, 13 candies. 13 candies. The problem with this equation is, अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन का डबल कर दिया और इस इक्वेशन को डायरेक्टली 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो x कितना आ गया 4x. और z, 13Z. मतलब ये वैल्यू तो आपको पहले से ही पता थी. यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग बिकॉज इसमें y कैंसिल आउट हो रहा है. देखिए, डबल से मल्टीप्लाई करती हाँ. तो ये वैल्यू जो आपको इधर मिल रही है ये तो आपको ऑलरेडी नोन थी. जब तक ऑलरेडी नोन डेटा आपके पास है, यू कैन नॉट डिटरमाइन एनीथिंग न्यू, राइट? बिकॉज अभी तक भी आपके पास 2 इक्वेशन है. Yes, sir. समझ में आया तो प्लीज वापस से बोल दीजिएगा, आई रिपीट इट. नहीं सर, आ गया. Going ahead. The cost of 9 chocolate bar exceeds the excess of cost of 9 chocolate bar and 3 candies over the excess क्या बकवास over the cost of 30 chewing gums. 30 chewing gums. ऐसा कुछ दे रखा है. Can I take 3 common? Yes, sir. ठीक है, अगर मैंने 3 कॉमन लिया तो मेरा कुछ ना कुछ तो बैठ जाएगा. सर एक मिनट, ये इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? इक्वेशन का मतलब है कि इसका वैल्यू आपको दे रखा है, कितना है वो नहीं बता रहा. अच्छा, ओके सर. Now, if it is given to you, can you determine this? We check. I need 30. कुछ तो डिवाइड बैठ रहा होगा. The cost of 3 chocolate bar, 4 chewing gums and 5. Again. अरे यार, I'm so sorry. इसका वैल्यू नहीं दे रखा ना आपको. नो नहीं. सर. If you are using this equation, आपने चौथा वेरिएबल और इंट्रोड्यूस कर दिया इक्वेशन, तो वैसे ही गलत. ये भी वैसे ही गलत होगी. This should be the correct answer. तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 में वैल्यू ही नहीं दे रखा. कोई सी भी इक्वेशन यूज करोगे चौथा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा. ओके सर. Can we go ahead? Yes, sir. Please. Nine. Next. 9. 9. बताने का है किसी को? नो सर. No, Anyone? sir. Let's go ahead. Next. 16. 16. बताने का है किसी को? यस सर.
क्या नाम है इसका? जैमी। Jamie can solve either 120 GK questions or 72 English questions or 60 maths questions in 3 minutes. One day during the first 3 minutes, he spent an equal amount of time in solving each of the 3 types of questions. Or the next K minutes, he solved exactly and GK questions and maths questions and English questions. ठीक है. He solved a total of 282 questions during the first 2K minutes on that day. What is the value of N? यार टी पे कुछ डिपेंडेंसी है क्या? लेट मी जस्ट चेक. मेरे हिसाब से तो नहीं है. चलो फिर भी देख लेते हैं. जीके का एक क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है? 1 by 120. आई गेस टी बाय 120. हाँ सॉरी, T by 120. यार एक काम करता हूँ मैं, मेरे को पता नहीं आगे जाके इट विल वर्क आउट और नॉट, बट मैं एक बार फिर भी ट्राई करना चाहता हूँ. मैं टी को अज्यूम कर लेता हूँ 360 मिनट्स. ओके सर. 120 क्वेश्चन. जीके का एक क्वेश्चन कितनी देर में सॉल्व करोगे आप? 3 minutes. 3 minutes. इंग्लिश का? 5 minutes. 5. मैथ्स का? 6 minutes. 6 minutes. ड्यूरिंग द फर्स्ट के मिनट्स. और के को ले लेता हूँ समथिंग विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3. ठीक है, तो उसने के मिनट्स में, एक मिनट में जीके का कितना क्वेश्चन होगा? के बाय 1/3. Yes sir. के बाय 3 मिनट्स में कितना होगा? आया ना? सही समझ नहीं आया. Yes, sir. Yes sir. 1 मिनट में 1/3 क्वेश्चन कर रहे हो आप. हम्म. के बाय 3 मिनट में कितना करोगे? हाँ. K/9. 1/3. हाँ. के बाय 15, के बाय 18. ठीक है. Yes sir. अगले के मिनट्स में जो टाइम आएगा, दिस इज टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3, 5, 6. हाँ या ना? हाँ या ना? सर क्या टाइम डिवाइड कर रहे हो? मैं बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ. ये सारी चीजें तो समझ में आ गई थी ना? Yes sir. ये स्टार्टिंग का के मिनट्स का आउटपुट है आपका. ठीक है. Yes sir. जीके का एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1/3 मिनट लगते हैं. इसका 1/5, इसका 1/6. जिसका अगर एलसीएम लेता हूं तो कितना आता है? 30. 30 आ गया एलसीएम. और एलसीएम अगर 30 आ गया तो ये रेशियो क्या बैठ गया आपका? 10:6, 6:5. हाँ. ठीक है. और आपको एन क्वेश्चन करना है. तो जीके का एक क्वेश्चन करने में तो 3 मिनट लग रहे हैं ना? Yes, sir. तो अपन 1/3 क्यों ले रहे हैं? अभी बताता हूँ मैं. 1 मिनट का टाइम दीजिए प्लस. ओके सर. या पता नहीं, मैं बार बार सोचूं कि इसका कुछ छोटा जुगाड़ बता दे. जुगाड़ बैठ नहीं रहा है. ओह, 3. सारी चीजें अज्यूम कर ली तो बैठेगा नहीं. नहीं बैठेगा, जाने देने का. ओके. सो आप बोलना चाह रहे हो कि n मिनट्स के लिए इतना टाइम लगेगा, Yes, sir. है ना? और इसके लिए इतना टाइम लगेगा, और इसके लिए इतना टाइम लगेगा. सर एक मिनट, एक मिनट. Sir, N by यहाँ 3 ही n होगा. को, अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत?
सर एक मिनट, आपने जो k/9 k/15 k/, निकाले, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना? यस मैम, तो आप इसमें +3n करेंगे ना आपके वो तो एन नंबर जीके ऑफ टाइम है ना मैम, क्वेश्चन थोड़ी है। नहीं, एन जीके क्वेश्चन लिखा है ना सर, तो मतलब ये। You mean to say +3 है सर? हाँ जी। चलो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। हाँ चलो एक छोटी सी बात बताओ, कैन आई से दिस इज इक्वल टू के? आपने पूरे 2k को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, स्टार्टिंग का के और अगला के, और सेकंड हाफ में आप बोल रहे हो कि एन क्वेश्चन इसके किए 3 मिनट वाले, एन क्वेश्चन इसके किए 5 मिनट वाले, एन क्वेश्चन इसके किए 6 मिनट वाले, तो टोटल आपको 14n लगा, विच इज इक्वल टू के, हाँ या ना? यस सर। तो n इक्वल टू k/14, हाँ या ना? यस सर। यस तो सर। दिस इज इक्वल्स टू 3n की जगह 3k/14, हाँ या ना? यस सर। सारे मिला मिलू के नंबर ऑफ क्वेश्चन है 282, हाँ या ना? हाँ। कैन आई सॉल्व इट टू गेट द वैल्यू ऑफ के? यस यस सर। सर। कैन आई पुट द वैल्यू ऑफ के टू गेट द वैल्यू ऑफ n? सर मैंने एक्चुअली किया था, लेकिन पॉइंट में आ रहा था आंसर। लेट्स टेक इट आउट, नो इश्यूज। एलसीएम बता देंगे मैम इन सब का? सर 630 आ रहा था मेरा। 630, चलो मान लेते हैं, सही है। तो ये हो गया 70 यस सर। प्लस ये हो गया 42। 42। हाँ 70 और 35। 42, 70 और 42 कितना होता है? कितना भी होता है? 112। 112 और 35, 147, हाँ एंड दिस इज 14 से डिवाइड, 210। 45। 45 होगा ना? ठीक है, 45 सीरियल। ओके सर, ओके। समझ में आया मैम? हाँ जी। नहीं, ये समझ में आया कि कैलकुलेटर यूज करना मना क्यों कर रहा हूँ? नहीं एग्जाम नहीं, में अरे तो ये था ना कि ये कैलकुलेटर, मैनुअली किया था सर, ये किया हुआ है मेरे पास। अरे वही तो समझा रहा हूँ कि एग्जाम में मैनुअली करते हो, यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करोगे तो यहाँ पे आदत पड़ेगी और एग्जाम में गलत करके आओगे मैनुअली। अच्छा ओके सर, ओके। बता दूं? हाँ नहीं नहीं, एक मिनट। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट प्लीज। सर 20। 20 हाँ। बताने का है किसी को? यस सर। अबे पूछ लो। देखो u, पेन कहाँ गया ये? U51 क्या होगा? S51 प्लस S50 प्लस, सर 52, सॉरी 52 हाँ, होगा 52 प्लस S53 ना? और अप टू सर इनफाइनाइट है ये तो। इनफाइनाइट, हाँ। फाइनाइट है। U50 क्या होगा? S50 S50, S51। S51, S52, S53 अप टू इनफाइनाइट। इफ आई सब्ट्रैक्ट द 2 तो कितना आएगा? S50। Sn क्या है? 5 की पावर 81 माइनस n। S50 क्या होगा? 5 की पावर 31। हाँ सर मेरे सर हिसाब से इसका ये माइनस लास्ट, Sn माइनस, आता हाँ माइनस होना चाहिए ना। -1 नहीं होगा? होना चाहिए। हाँ सर तो मैंने ये तो समझ नहीं आया। किया था। सर -S50 किया था, उसके बाद समझ नहीं आया कि कैसे करना है। ये किसको नहीं समझ में आया? आ गया। आ गया सर। ये किसको नहीं आया? आ गया। ये किसको नहीं आया? आ गया। किसी ने तो बोला था नहीं आया समझ में। सर वो मैंने जब बोला था। माइनस की जगह प्लस था। हाँ, हिमांशी क्लियर है अभी? हाँ। Sn का वैल्यू आपको ये दे रखा है, ठीक है। n को 50 पुट कर दिया, हाँ। आंसर आ गया। लेकिन प्रॉब्लम इतना है कि मेरा आंसर आ रहा है -5 की पावर 30।
हाँ सर, यही चीज हो रही सर यही था, तभी उसको फिर -1 टिक किया था। मैडम यार एक बात बताओ, -5 की पावर 31 को 5 की पावर 31 -1 टिक करूंगा, या फिर 5 की पावर 31 कंसीडरिंग ह्यूमन एरर है, मैं इसी पे जाऊंगा ना, इस पे तो कैसे ही जाऊंगा। तो सर -5 की पावर 31 ही सही आंसर है ना? दैट शुड बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू। ओके सर। सर ये -1 का सीरीज एंड से थोड़ी ना कोई रिलेशन है। -1 का सीरीज से नहीं पड़ेगा मैम, चक्कर क्या है कि इसमें ऑल्टरनेट टर्म्स होते ना, तो -1 का सीरीज मैटर करता, सारे टर्म पॉजिटिव। ओके सर। गेटिंग इट, एस एम माइनस एस एम प्लस 1 प्लस एस एम प्लस 2 माइनस एस एम प्लस 3 होता, तो इट वुड हैव मेड अ डिफरेंस। ओके सर। एक बार और देख ले क्या। यार मेरे को जो मिस्टेक लग रहा है ना, वो आंसर में नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है यहाँ पे एस ऑफ एम -1 होना चाहिए था, -2 होना चाहिए था, -3 होना चाहिए था। अदरवाइज पहला दिक्कत तो ये आ रहा है कि इनफाइनाइट जीपी बन रहा है, इनफाइनाइट सीरीज बन रहा है, यू कैन नॉट कॉल इट टू बी अ जीपी। यस सर। तो मेरे हिसाब से अगर ये नेगेटिव होता ना, तो ये S0 पे या फिर S1 पे जाके रुक जाता। हाँ। तो मेरे हिसाब से m+1 की जगह m-1 होना चाहिए। वी कैन जस्ट चेक आउट द सोल्यूशन एज वेल, इन्होंने कुछ और दे रखा है क्या। S81 निकाला, S80 क्या बकवास कर रहे हैं। U51 निकाला, S51 से S81। सबसे इतने सबकी नीड ही नहीं, छोड़ दो। सर इनका तो खुद का फाइनल आंसर 5 की पावर 31 है। हाँ तो 5 की पावर 31 ही तो टिक करवाया इन्होंने मैम ऑप्शन में। इनका ऑप्शन अलग है ना। नहीं, 5 की पावर 31 इज द करेक्ट आंसर, देखिए। अच्छा ओके, हाँ हाँ सॉरी। बट एनीवेज जाने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने गलत कर रखा है। गोइंग राइट, नेक्स्ट प्लीज। सर वो खत्म हो गया, पार्ट 2 और पार्ट 3 है, फर्स्ट बोलिए, क्वेश्चन। बताने का है किसी को। नो सर। नो सर। दिया, यस सर। बताने का है। नहीं बोला ना सुबह वाला मूड अलग था, अभी वापस से वही बेइज्जती वाले पे आ गया। सुबह भी सर। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, सच बता रहा हूँ, लेकिन वो मैंने लंबा वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, याद है ना। ठीक है सर, ये वाला नहीं पूछ रही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट या 5, वेलकम सर। क्वेश्चन नंबर, 5th। बताने का है किसी को। नो सर। नो सर। नो सर। पूछ लो कोई, बहुत बेसिक सा नहीं नहीं क्वेश्चन सर। है। नेक्स्ट, 8। बताने का है किसी को। यस सर। और किसी को। नो सर। एक ही बच्चे को नो पूछना है, सर। यार हद है। आता किसको है तुम में से ये। सर ये सोल्यूशन देख के समझ, मतलब हाँ वही। लाइन का स्टेटमेंट था तो समझ में आ गया। कोई फायदा ना है मैडम, 4 बार तो मैं करा चुका हूँ ये क्वेश्चन, हाँ उसके मतलब बाद आप भी आप भी करवा सोल्यूशन चुके हैं, देख, इसीलिए हेल्प आ गया था नीचे से। उसके बाद भी सोल्यूशन देख रहे हो। नहीं नहीं, अरे सॉरी सर। यू शुड बी। कल एक बार भी नहीं पूछा मैडम, कम से कम 10 बार तो सॉरी। हाँ हाँ, मेरे को याद है, हमने लास्ट में करवाया था पेयर बनवा बना के आई एम एग्जैक्टली टॉकिंग सेम। अबाउट सॉरी। अच्छा। हाँ। हिमांशी देखिए मैम प्लीज, यस सर। F1 का वैल्यू बताएंगे। 36/36 + 6। यस सर। F1/99 का वैल्यू बताएंगे। 36 × 1/99।
अपॉन अपॉन 36 पावर 1/99 plus 6. F 98/99 का वैल्यू बताएंगे? 36 power 98/99 upon 36 power 98/99 plus 6. इन दोनों को ऐड कर देंगे। Okay. 3699/99. अच्छा एलसीएम नहीं है ना इसका। चलो एक काम करो, थोड़ा और इजी कर देते, इसको आप 36 अपॉन 36 1/99 लिख सकते हैं क्या, केवल न्यूमरेटर को? यस सर। इसको आप 36 अपॉन 36 1/99 लिख सकते हैं क्या? यस सर। न्यूमरेटर में से 36 कॉमन ले सकते हैं क्या? यस सर। यार इससे भी कॉम्प्लिकेटेड होगा, आप तो एक काम करो, सिंपल ही ऐड करो, इतना क्यों कॉम्प्लिकेट करें। एलसीएम लिया 36 1/99 प्लस 6, 36 98/99 प्लस 6, हाँ या ना? यस सर। ये हो गया 36 1/99 इंटू 36 98/99, कितना हो गया? 36 99/99 हाँ प्लस 6 इंटू 36 1/99 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया 36 और इसको मल्टीप्लाई किया 6 इंटू 36 98/99। ऊपर हो डिनोमिनेटर ओपन करता हूँ, 36 1/99 36 1/99 36 प्लस 6 इंटू 36 1/99 प्लस 6 इंटू 36 98/99 प्लस 36, हाँ है ना? यस सर। न्यूमरेटर 36 6 इंटू 36 1/99 6 इंटू 36 98/99 प्लस 36, हाँ है ना? यस सर। ये हो गया 1 यस सर। 1 1 1 49 पेयर बनेंगे। ओके सेम क्वेश्चन करवाया वो सर, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। मैडम, आप बहुत दिनों बाद आए हो मीटिंग। ये कल नहीं आई थी। मैम कल करवाया भी, पता नहीं सर। मुझे पता है। Shall I remove this? यस सर। Next question please. अरे सर वो 18 14 14 14। यार आगम, एक तो काम दे रखा है वो भी ढंग से नहीं करते हो तुम यार। अरे सर बता तो रहा हूँ 14 है अगला। अटकते क्यों भाई? मालिक माफ कर दो। अमीरी देख लो, एक बंदे को तो हमने ऐसे ही रख रखा है आगे नंबर बताने के लिए। सर कल से नहीं बताऊंगा मैं, सॉरी सर। अरे मालिक नाराज क्यों होते हो यार? बताने का है किसी को? नो सर, रहने दो। नो सर। हाँ सर। सही में बताने का है? हाँ पूछो। सर ये कोऑर्डिनेट का है क्या? यस मैम। ठीक। If the area of the triangle formed by the equation 2x plus y equal to 10, ये ड्रॉ कैसे करेंगे मैम, बता सकते हैं आप? दिया सर, मतलब एक बार x को 0 मान x लेंगे, को 0 लिया, y कितना आया? 10 y को 0 लिया, x कितना आया? 5। एक लाइन तो ये हो गई। हाँ x plus y equal to 10, x को 0 लिया, y कितना आया? 10। x को y को 0 लिया, y को x 0 भी लिया, 10। हाँ एक लाइन ये हो गई। ये 5, अरे यार ये उल्टा लिख दिया क्या मैंने? ये 0,10 है, ये 10,0 है, ये 5,0 है। एंड x equal to 7,
x इक्वल टू 7 ऐसी एक लाइन होगी। हाँ क्या बात करो, इफ द एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस ओहो सर डाइकोसिस हाँ सॉरी, एक क्वेश्चन था मेरे को। बोलिए मैम। सर वो 12th में एक मैट्रिक्स का फॉर्मूला था, इसको उससे कर सकते हैं ना? मैम उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ वर्टाइसिस ऑफ ट्रायंगल पता होना चाहिए, पहले वो निकाल के दिखा देता हूँ आपको, फिर आप लगा लीजिएगा। अच्छा। लेकिन अपने साथ कुछ कॉमर्स के गरीब बच्चे बैठे हैं, जिन्हों के पास 10वीं के बाद गणित नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, तो मुझे पूरा मेथड बताना पड़ेगा, राइट? नहीं सर, मैंने निकाले थे, मैं कर लूंगी। ओके। चलो ठीक है मैम, आपके पास तो थी मैथ्स दिया। हाँ सर, पर मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, मेथड से ही बता दो प्लीज। पूरा बताऊं? बता हाँ देते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को क्या दिक्कत है। देखो सबसे पहली बात तो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन इस लाइन से इंटरसेक्ट कहाँ करेगी, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है दोनों को सॉल्व कर, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का तरीका ये तो पता है आपको भी। हाँ I'll subtract the two equations. I'll have x equal to 0 x इक्वल्स हाँ and putting हाँ x equal to 0 I'll have y equal to 10। 10 मतलब हाँ इसका इंटरसेक्शन पॉइंट 10, 0 हो गया। मतलब हाँ मेरे पास एक कोऑर्डिनेट आ गया 10, 0 सॉरी हाँ 0, 10। हाँ अब मेरा दूसरा है 2x plus y equal to 10 and x equal to 7। तो 7 पता ही है x equal to 7, तो x को 7 पुट कर देने का है, y तो equal to y minus माइनस 4 फोर हो आएगा। जाएगा। हाँ तो दूसरा पॉइंट आ गया मेरे पास 7, -4। हाँ और एक मेरे को निकालना है x इक्वल टू 7 और x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो ये मेरे पास आ गया 7, 3। सर, पर जैसे आपने नीचे डायग्राम बनाया ना, मतलब ये ये रहा मैडम कॉर्ड। आपका 7, 3, ये रहा आपका 7, -4 और हाँ ये रहा आपका 0, 10। तो सर डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, मतलब जैसे आपने ये अभी पॉइंट्स मार्क करे थे ना, 10 कॉमा मतलब लाइंस बनाई थी, फिर उस निकाल टाइम। सकते हैं मैम, निकाल सकते हैं, लेकिन आप नहीं निकाल पाओगे क्योंकि अभी तक मैंने कोऑर्डिनेट नहीं समझाया। यहां तक समझ में आ गया? हाँ आपको फॉर्मूला याद निकाल दिला दूं तो आप याद निकाल लेंगे ना? हाँ बता। मैम फॉर्मूला बताएंगे? चारुल आपको याद था ना फॉर्मूला? सर वो है क्या, हाँ x1 y2 माइनस सर। y3 हाँ एग्जैक्टली मैम, प्लस याद आ गया। यस सर। x2 y3 माइनस y1 सर प्लस मेरा बस माइक नहीं ऑन हो रहा था मैं। बहुत बहुत काफी है मैडम, y1। आप तो इंटेलिजेंट हो। इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे, हाँ ठीक है। पी का और वैल्यू आ सर गया। बाकी 3 इक्वेशन से भी ऐसा ही करना है, फिर फॉर्मूला लगाना है। एकदम, क्या बात है, बहुत जल्दी समझ ठीक। गया। हटा दो। हाँ नेक्स्ट प्लीज। 18। बताने का है? रहने दो सर। पूछ लो यार, दिल में इच्छा है तो। नहीं नहीं सर, इच्छा मर गई। अगम तुम जिंदा रहो, इच्छा होगा क्या है, वापस से। नेक्स्ट 19। बताने का है? जवाब तो दे दिया करो। तो नो रहने दो सर, सर। इसको भी रहने दो। नेक्स्ट 22। बताने का हाँ है? बता दो। हाँ यस सर, सर। सही, बस हेड थ्योरी से बता देना बस प्लीज। मैं सुपर इंटेलिजेंट थोड़ी हूँ यार, मैं तो प्रोबेबिलिटी से ही बता पाऊँ। तो एक बार, चलो ठीक ज्योति है। ज्योति मैडम से पूछो उन्होंने कैसे किया। ज्योति मैम हो क्या आप? यस सर। बताइए मैडम, विदाउट प्रोबेबिलिटी कैसे किया? हाँ मैम प्लीज। मैंने लास्ट में जाके प्रोबेबिलिटी लगी थी। तो, सर ठीक, वंशिका दीदी से पूछ लो। हाँ पूछो। वंशिका मैम। आदम तो चुप हो जा। अरे मैम आप अरे, ऐसे डांट नहीं सकते हो किसी को। आगम यू कंटिन्यू। क्या कंटिन्यू करूं सर, 13 जनों में बेइज्जती हो जाएगी फिर कल नहीं, मेरे को मुझे वैसे भी वीडियो ना आना है। जांचना है। देखा, चारुल को भी पता करना है। आगम एंड चारुल बोथ ऑफ यू कंटिन्यू। यार सर यार, वंशिका दीदी फोटो भेज दो ग्रुप में। मैं कल भेज दूंगी भाई अरे सर, प्लीज वंशिका दीदी को स्पेसिफाई करो, वंशिका दीदी खुद की फोटो भी भेज सकती है। यार सर कुछ भी।
तो क्या पता CFA का सर्टिफिकेट ही भेज देते। मैंने इसने मेरे को सीएफए का सर्टिफिकेट दिखाया, मैंने बोला कि यार ये तो मैं ही बना लूंगा, मेरा बोले मैंने भी ऐसे ही बना। यार सर देखो, उसमें 2.5 साल लगाया मैंने, सॉरी उसमें 2.5 साल लगाया है मैंने। मैडम, मैं 2.5 मिनट में बना के दे दूंगा आपको, आपकी बेवकूफ तो हो बात दो। इसीलिए तो वैल्यू नहीं है सर। अब वैल्यू माइक ऑन हुआ तेरा? वैल्यू है भाई, केवल कैट वालों ने ही तो नहीं पूछा। सर वो पहली बार बोला होगा वो। हाँ अरे वो मैंने क्लास के बीच किया। में भी बोल रहा था, तुम्हारी आवाज में नहीं आ रही थी आवाज। आदित्य, आई एम विद यू। सर हाँ जी, मैं व्हाट्सएप कर रही हूँ, एक बार देख लीजिए। सोल्यूशन हाँ LK वाले ग्रुप में भेज दो। वो मेरे को मिल नहीं रहा। नहीं, मैं सर को ही दिखाऊंगी। विदाउट सर आप विदाउट स्क्रीन शेयर कर देना। अरे मैडम, विदाउट प्रोबेबिलिटी भेज रहे हो ना? हाँ फिलहाल तो मतलब लास्ट में जाके वो फॉर्मूला लगा। अरे यार, फिर वही बात ना मैडम, प्रोबेबिलिटी से तो ये चारों ही बता देगी, फिर आप सुपर इंटेलिजेंट कैसे होगे? अरे सही था सर। ऐसे ही है। चलो, प्रोबेबिलिटी से बताने का है किसी को? यस सर। नो सर। चलो लेट्स चेक इट आउट। किसी ने तो हाँ बोला है, मेरे को नहीं पता कौन। 70 बिजनेसमैन ओनली कौन सा बिजनेसमैन स्कूटर है जिसके पास क्यों? स्कूटर, बाइक, कार, स्कूटर, बाइक, कार, 70 लोग थे। 20 ओन ओनली स्कूटर, 10 ओन ओनली बाइक, 15 ओन ओनली कार, 5 ओन ऑल 3। यार एक बात बताओ, इन सबको ऐड करो, कितना हो गया? 50 50। तो ये जो 3 वैल्यूज हाईलाइट कर रहा हूं, ये कितनी होगी? 20 20। 20। ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी दैट दे आर सिलेक्टेड एट रैंडम एंड पोजेस एग्जैक्टली 2 आइटम्स, ओनली 2 आइटम्स। प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम है आपके 20, टोटल आउटकम है आपके 70। आंसर इट्स 2/7। यस सर। Clear to all? Anyone having a doubt can ask. नो सर, थैंक यू। नो सर। आगम, आई एम सो सॉरी, मैं बिना प्रोबेबिलिटी नहीं बता पाया आपको, नहीं नहीं, आ गया सर। बट मेरा भी यार माफ एक करा। नॉलेज का बेस लिमिट है, उसके आगे मैं नहीं बता पाता हूँ। सही बात है सर। चलो खत्म। यस सर। यस सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। चलो, फाइनली विद दिस वी आर डन विद द डिस्कशन ऑफ मॉक कैट 5 क्वांट सेक्शन।